Good evening, ladies and gentlemen, and we are starting the news hour with some breaking news coming in. Exclusive details of the Prime Minister's statement made at the all-party meeting, which is just concluded. The Prime Minister, in his statement, has said, "ना वहाँ कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं के देश की रक्षा के लिए जो करना है वो सब कर रही है। आज हमारे पास कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी इस 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज भारत की जो सेना है और जो सीमाएं हैं एक्सक्यूज मी, वो पहले से सुरक्षित हैं और उनकी तरफ आज अलग अलग सेक्टर्स में मूव करने की हमारी सेना की ताकत भी है। बीते वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्राथमिकता दी है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सेनाओं को दूसरी आवश्यकता है, जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है और पेट्रोलिंग करने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले कोई भी यहां आकर जा सकता था, लेकिन आजकल हर इंच पर भारतीय सेना का एक जवान खड़ा होता है और वो सवाल पूछता है, किसी को अंदर घुसने नहीं देता। These were the Prime Minister's words when he addressed the all-party meeting, and let's just look at what transpired in the all-party meeting. Let's give you a sense. Sonia Gandhi, as expected, Congress President, slammed the government for sending our braves unarmed. That was the tweet that we saw early in the morning from Rahul Gandhi, and that is the note at which this whole all-party meeting started. Rahul Gandhi, who's celebrating his 50th birthday today, actually blamed the government for sending our army braves across to the frontier with China, and he said no arms were there with the armed forces, and that is why 20 of our army men had died. But not one single alliance partner agreed with Mr. Rahul Gandhi. Let's take a roll call of the Hall of Fame. NCP Chief Sharad Pawar, he said, need to respect international pacts, and these are sensitive issues. To question whether our armed forces have arms or did they fire or not is not something that should be done in the opening. That was Sharad Pawar, alliance partner in Maharashtra with Sonia Gandhi's Congress, Rahul Gandhi's Congress, clearly responding to Rahul Gandhi and his tweet first thing in the morning. Uddhav Thackeray, he said, we are with our forces and their families, and we are with the Prime Minister. He said, हमारे देश में वो ताकत है कि हमारी तरफ आंख उठा के देखने वालों की हम आंखें निकालकर हाथ में दे देंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश की शान बढ़ाई है. That was Uddhav Thackeray. Look at Mamata Banerjee. She said a strong message should be sent to China. She also said that China is not a democracy, India is a democracy. If we have any questions, we should speak within in hushed tones, but not give the world an appearance that we are divided. That was mature. That was mature Mamata Banerjee. JDU Chief Nitish Kumar, India can't be China's dumping ground. Talked about economic measures that should be taken. Again, even he comes and stands right behind Prime Minister. And Congress is questioning, want specific details on Chinese intrusion? Well, Samajwadi Party gave that. Ram Gopal Yadav, who was Akhilesh's representative, said nation is one, and that is the message. That's what was the response to Congress. Mayawati says that it's not the time for politics and this country should be united, and this was in response to the Congress's question where saying, why are you keeping... आप सभी वरिष्ठ महानुभावों ने
जो विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी
हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी ये सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। Well, that was the Prime Minister, and today he gave a befitting reply to anybody who had any questions on how the government or our army or our other forces were taking care of our borders. He made it clear that nobody has entered into Indian territory, and he said that infrastructure is being developed to make the life of the army man easier, to take things to the border easily so that they can be backed in their fight. He also made it a point to say that it is because of this infrastructure building that there are problems at the line of actual control. Because you build infrastructure, you strengthen India, your neighbors are going to have a problem because they want a free pass
to come in and go from Indian territory. Infrastructure that was never built in the past has been made. The Prime Minister also stressed on how they had actually helped in giving those modern equipment to the armed forces that were necessary to make them strong. Whether it was missile systems, whether it was modern helicopters, whether it was aircrafts, everything was being done. And he said very clearly, not one single post of India has been taken over by any enemy country.